morning dear students. In the previous class we had started with the topic of innate immunity. We said that immunity is a type of defense system of our body. It will be protecting us from various pathogenic organisms like bacteria and viruses. The immunity which we inherit since our birth and which is with us from our birth to our death, that is throughout the lifetime, is referred as the innate immunity. This immunity we have inherited from our parents and it is non-specific. The innate immunity includes 4 major barriers, out of which 2 were being discussed in the previous class. The 2 barriers were, the first was the physical barrier, which includes your skin and the mucous membrane. And the second one was the physiological barrier, which includes the lysozymes present in the tears, present in the saliva, the bile, the acidic pH of our stomach, were some of the examples included in the physiological barrier. Now we are moving on to the third type of barrier included in the innate immunity, and that is the cellular barrier. So third one we will mention is the cellular barrier. Now cellular barrier includes all the different types of cells. It includes various types of cells that are a part of a barrier mechanism, a defense mechanism of our body. The first one out of which are the leukocytes. Along with leukocytes there are macrophages. With macrophages, we also consider one more type of cells which are known as NK cells, natural killer cells. NK cells are known as natural killer cells. Complement system, inflammation, and fever. All are considered as a cellular barrier. Cellular barrier में leukocytes, macrophages, NK cells, complement system, inflammation और fever, ये सारे ही include हो जाते हैं in the cellular barrier. So now we are going to look upon each of them in detail. The first one that we are going to talk is about the leukocytes. अब leukocytes जो हैं, that is simply your white blood cells. But out of these white blood cells also, specifically, there are 2 main types of cells which are very much helpful as a defense mechanism of our body. These 2 cells which I am talking about is the neutrophil, which is polymorphonuclear leukocyte. We are talking first about the leukocytes, but in leukocytes also mainly there are 2 main types of cells. The first one are the neutrophils and the second are the monocytes. These both are the types of leukocytes that will be having a phagocytic role in our body. So neutrophils are known as polymorphonuclear leukocytes just because they have multi-lobed nucleus. The nucleus of these cells, neutrophils का जो nucleus होता है, it is multi-lobed nucleus and therefore it is referred as polymorpho. Morpho मतलब अलग-अलग shape. Poly means many. Different shapes of nucleus can be there if we are talking about the neutrophils. Neutrophils are short-lived but highly motile. These cells are short-lived but highly motile and they are formed in the bone marrow. Formation of neutrophil occurs in the bone marrow and these are motile cells. Motile means they can move from one place to another within the blood, right? So they can circulate along with the blood and these are formed in the bone marrow. If we talk about the
नंबर ऑफ न्यूट्रोफिल्स, तो सारे ही ल्यूकोसाइट्स में जो सबसे ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं वो है न्यूट्रोफिल्स. सो 40 to 75% ऑफ द ल्यूकोसाइट्स आर योर न्यूट्रोफिल. तो न्यूट्रोफिल काउंट बहुत ही ज्यादा होता है हमारी बॉडी में. सारे ही ल्यूकोसाइट्स को अगर कंसिडर करें तो बेसोफिल सबसे कम होते हैं, पर सबसे ज्यादा जो होते हैं वो होते हैं न्यूट्रोफिल्स. तो सबसे ज्यादा 40 to 75% जो है वो न्यूट्रोफिल्स है. और नेचर में न्यूट्रोफिल्स जो हैं ये फेगोसाइटिक होते हैं, एंड देयरफॉर दे कैन एनगल्फ द बैक्टीरिया एंड द सेल्यूलर डेब्रिस. बैक्टीरिया और सेल्यूलर डेब्रिस जो है वो एनगल्फ कर सकते हैं. लाइफ स्पैन इनकी कम होती है, सो दे हैव टू बी ऑफन रिप्लेस्ड. ठीक है, इनका रिप्लेसमेंट होता रहता है और नए न्यूट्रोफिल्स फॉर्म होते जाते हैं फ्रॉम द रेड बोन मैरो. सो दैट वाज न्यूट्रोफिल्स, polymorphonuclear leukocytes, PMNL. The next type of leukocytes which are very common are the monocytes. तो जो monocytes हैं, these monocytes will be having a clear cytoplasm, मतलब granular cytoplasm नहीं होता, क्लियर साइटोप्लाज्म होता है जिसमें ग्रैन्यूल्स नहीं होते. ये भी मोटाइल है एंड फेगोसाइटिक. These are also motile and phagocytic, and lifespan is of 10 to 12 hours. Lifespan of monocytes is very less, 10 to 12 hours के लिए होते हैं. After which if a monocyte enters into a tissue, it will change into macrophages. अगर इनके शेप की बात करें तो अमीबॉइड शेप होता है, अमीबॉइड शेप, and they have a bean shaped nucleus. So monocytes are again phagocytic and motile cells. Monocytes will have a clear cytoplasm without any granules. 10 to 12 hours is the lifespan of the monocytes. Amoeboid in its shape, irregular shape होता है, and they have a bean shaped nucleus. They are also formed in the bone marrow, and monocytes changes to macrophages when they enter the tissue. So we will mention that changes to macrophages after entering into the tissues. तो टिश्यू में एंटर हो जाने के बाद मोनोसाइट्स जो है वो मैक्रोफेजेस में चेंज हो जाते हैं. तो ल्यूकोसाइट्स के बारे में हमने पहले बात कर ली. द नेक्स्ट सेल्यूलर बैरियर इज द मैक्रोफेजेस. सो नेक्स्ट वी टॉक अबाउट मैक्रोफेजेस. Macrophages are comparatively long-lived, and they circulate in blood for 8 to 10 hours. 8 to 10 hours के लिए macrophages जो होते हैं वो blood में circulate करते हैं, and after which they enter into a tissue and they differentiate into tissue macrophage. Then enter into the tissue and change to tissue macrophage. After entering into the tissue, they become a tissue macrophage. अब टिश्यूज में मैक्रोफेजेस दो तरह के होते हैं. फिक्स्ड मैक्रोफेजेस होते हैं एंड वैंडरिंग मैक्रोफेजेस होते हैं. फिक्स्ड मैक्रोफेजेस मतलब जो टिश्यू में एक ही जगह पे फिक्स हो जाते हैं एंड दे डू नॉट मूव फर्दर इन द टिश्यू, वो होते हैं फिक्स्ड मैक्रोफेजेस. वैंडरिंग मैक्रोफेजेस मतलब जो टिश्यू में भी घूमते रहते हैं, और मैक्रोफेजेस का मेन नेचर होता है फेगोसाइटिक नेचर, और फेगोसाइटिक नेचर मैक्रोफेजेस का होता है. इसका मतलब कि ये बैक्टीरिया या पैथोजन या सेल्यूलर डेब्रिस को एंगल्फ कर लेते हैं, खा लेते हैं, राइट. सो दे विल बी डाइजेस्टिंग एनी ऑफ द बैक्टीरिया दैट इज प्रेजेंट इन योर टिश्यू एंड देयरबाय प्रोटेक्ट्स योर ऑर्गन्स. तो यहाँ पे मैक्रोफेजेस जो है वो एक्चुअली मोनोसाइट्स का ही मॉडिफाइड फॉर्म है. मोनोसाइट्स इनिशियली कहा जाता है, पर जब मोनोसाइट्स डिफरेंशिएट होते हैं टिश्यू में एंटर होने के बाद तो उन्हें मैक्रोफेजेस कहा जाता है.
मोनोसाइट्स का लाइफ स्पैन कम होता है पर मैक्रोफेजेस का लाइफ स्पैन ज्यादा होता है क्योंकि वो टिश्यूज के अंदर ही मोस्टली रहते हैं। टिश्यूज में मैक्रोफेजेस फिक्स्ड भी होते हैं, कई मैक्रोफेजेस जो अपनी जगह पे लोकलाइज होते हैं और कई ऐसे होते हैं जो टिश्यू में भी घूमते रहते हैं। तो जो फिक्स्ड मैक्रोफेजेस है उनके अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो हम कह सकते हैं कि देयर विल बी पल्मोनरी मैक्रोफेजेस इन योर लंग्स, पल्मोनरी मैक्रोफेज जो लंग्स में होते हैं, राइट। ऑस्टियोक्लास्ट जो बोन्स में होते हैं, ऑस्टियोक्लास्ट भी एक मैक्रोफेज ही है पर वो स्पेसिफिकली सिर्फ बोन में प्रेजेंट होता है, राइट। देयर आर अदर मैक्रोफेजेस लाइक मेसेंगियल मैक्रोफेजेस फाउंड इन ब्रेन, right? There are microglial macrophages that are found, microglial that are found in the brain. There are macrophages that are found even in our liver, जैसे कि Kupffer cells of liver. Kupffer cells जो लीवर में होते हैं, ये किस तरह के मैक्रोफेजेस हैं? ये फेगोसाइटिक सेल्स होते हैं जो हमारे लीवर में होते हैं। तो लंग्स में हमारे पास फिक्स्ड मैक्रोफेजेस है जो है पल्मोनरी मैक्रोफेजेस, बोन में फिक्स्ड होते हैं वो होते हैं ऑस्टियोक्लास्ट मैक्रोफेजेस, कपफर सेल्स जो हमारे लीवर में होते हैं वो भी एक तरह के मैक्रोफेज है। सो इन शॉर्ट वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैक्रोफेज सेल्स व्हिच आर प्रेजेंट इन डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी। तो यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया है अबाउट द सेकेंड पॉइंट दैट इज द macrophages. Now we are talking about the next type of cells which are the NK cells, natural killer cells. तो natural killer cells जो है it is a type of lymphocyte, it is a type of lymphocyte का टाइप है। लिम्फोसाइट्स हमने ऑलरेडी पढ़े हैं, दो तरह के बी सेल्स और टी सेल्स। तो एक्चुअली लिम्फोसाइट्स दो तरह के नहीं है, तीन तरह के होते हैं, बी सेल्स, टी सेल्स एंड द नेचुरल किलर सेल्स। नेचुरल किलर सेल्स जो हैं दे आर आल्सो बिसाइड्स द फेगोसाइटिक सेल्स प्रेजेंट, नेचुरल किलर सेल्स आल्सो हेल्प्स टू रिमूव द पैथोजेंस। What they do is they perform a mechanism which is known as cytolysis, that is जो बैक्टीरिया होता है उसके या माइक्रोब होता है उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ये ब्रेक कर देते हैं, पोर्स क्रिएट कर देते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पोर्स क्रिएट कर देने की वजह से क्या होता है कि वाटर जो है एवरीथिंग एंटर्स इनटू द सेल, और माइक्रोब में वाटर और सब एंटर होने की वजह से सेल विल स्वेल एंड इट विल बर्स्ट। दैट इज हाउ द प्रोसेस ऑफ साइटोलाइसिस टेक्स प्लेस। तो यहाँ पे मैं वर्ड मेंशन कर रही हूं, साइटो lysis of microbes। साइटोलाइसिस ऑफ माइक्रोब्स मतलब मैंने जैसे कहा कि ये ऐसे केमिकल सब्सटेंस रिलीज करते हैं जिनकी वजह से बैक्टीरिया के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होल्स बन जाते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होल्स बन जाने की वजह से इस मेम्ब्रेन में से वाटर जो है वो एंटर होता है, जिसकी वजह से माइक्रोब जो है वो स्वेल हो जाता है और अल्टीमेटली बर्स्ट हो जाता है। तो यहाँ पे ये नेचुरल किलर सेल्स का फंक्शन है। और दूसरा एक फंक्शन नेचुरल किलर सेल करते हैं जो है एपोप्टोसिस, दैट इज नेचुरल सेल डेथ। एपोप्टोसिस जिसे कहा जाता है नेचुरल सेल डेथ। एपोप्टोसिस जो है वो एक नॉर्मल सेल के ग्रोथ, मेंटेनेंस और फिर उसका डिजेनरेशन होता है और फिर नया सेल बनता है, वो एक नॉर्मल मैकेनिज्म है जिसे सेल्फ किलिंग ऑफ सेल्स भी कहा जाता है। जब सेल बहुत ही पुराना हो जाता है तो वहां पे उसका एपोप्टोसिस हो जाता है, दैट इज नेचुरल सेल डेथ। और वो फंक्शन भी किसका होता है? नेचुरल किलर सेल्स का। नेचुरल किलर सेल्स में बी सेल और टी सेल की तरह सरफेस पे कोई एंटीजेंस नहीं होते। There are no antigens present on the surface of the natural killer cells like B cells and T cells. Okay, तो नेचुरल किलर सेल लिम्फोसाइट्स हैं, एक तरह के लिम्फोसाइट्स हैं, and they will be responsible for cytolysis of the microbe through release of certain chemical substances which create pores in the plasma membrane of the microbe, and they perform apoptosis, which is the natural cell death. Next we will talk about the complement system.
So next we talk about the next innate immunity, that is cellular barriers we are talking about, is the complement system. Complement system is actually a group of 20 proteins. Group of 20 proteins that are produced by the liver. तो 20 प्रोटीन्स का ऐसा ग्रुप है जो लीवर से प्रोड्यूस होते हैं ये सारे प्रोटीन्स, एंड दे आर रिलीज्ड इन द सीरम ऑफ द ब्लड, क्योंकि ब्लड जो है उसमें होता है ब्लड प्लाज्मा और ब्लड सेल्स. प्लाज्मा में भी क्लॉटिंग फैक्टर्स को छोड़ के बाकी का कंपोनेंट जो है उसे सीरम कहा जाता है. तो ये सारे ही जो प्रोटीन्स हैं वो सीरम पार्ट में होते हैं and they circulate in the blood. Complement system also creates pores in the plasma membrane of the microbe. So it is responsible for creating pores in the plasma membrane of microbe. और pores create करना मतलब pores create होंगे, water enter होगा, cell will swell, they will burst, and that is how they kill the cells. और बाकी का जो मटेरियल रह जाता है सेल डेब्रिस, that is removed by the phagocytic cells. तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम इसी तरह का एक 20 प्रोटीन्स का बना हुआ एक ग्रुप है, और ये 20 प्रोटीन्स हमारे ब्लड में ही सर्कुलेट होते हैं, and at any time when they find a pathogen they will simply attack the pathogen by creating pores in its membrane. So that is how the complement system works. The next mechanism is inflammation. तो inflammation जो होता है inflammation कब होता है? तो it is a natural defense of our body tissues against any pathogen. Inflammation is a type of natural defense of our body tissues against the pathogen. तो कोई भी पैथोजन जब हमारी बॉडी में एंटर होता है तो एक नेचुरल मैकेनिज्म होती है कि वहां का जो टिश्यू है इट इज गोइंग टू बिकम स्लाइटली रेड एंड स्लाइटली स्वोलन. तो रेडनिंग और स्वेलिंग इज वेरी कॉमन सिम्टम ऑफ इन्फ्लेमेशन, right? Even a small mosquito bite can result into inflammation in that particular region. So inflammation occurs due to what? It occurs due to any bacteria or any pathogenic organism. It occurs due to destruction of the cells in that particular region or due to some chemical irritant. ऐसा हो सकता है, right? Inflammation के कई reasons हैं. Inflammation can be due to, it can be due to a pathogen which has entered or some chemical or some skin irritation, right? Or it can occur due to injury or deterioration of that cells, right? उस जगह पे अगर कोई इंजरी हो चुकी है तो भी इन्फ्लेमेशन कॉमन है. इन्फ्लेमेशन की अगर साइंस की बात करें तो इन्फ्लेमेशन पता कैसे चलता है? तो देयर विल बी रेडनिंग, swelling, pain and heat. ये चार चीजें वहां पे देखने को मिलेगी. जिस जगह पे आपको इन्फ्लेमेशन है वहां पे थोड़ा रेड हो जाएगा, थोड़ा स्वोलन हो जाएगा, पेन थोड़ा बहुत होगा, एंड देयर विल बी हीट दैट इज बीइंग जनरेटेड आउट ऑफ दैट रीजन. द मेन सेल्स रिस्पॉन्सिबल आर द मास्ट सेल्स जो रिलीज करते हैं हिस्टामाइन. मास्ट सेल्स विच रिलीज हिस्टामाइन, और ये जो हिस्टामाइन है ये हमारी ब्लड वेसल्स, ब्लड कैपिलरी को डायलेट कर देता है, और ब्लड कैपिलरी डायलेट हो जाने की वजह से प्लाज्मा जो है दैट रीचेस द इंजर्ड साइट. जो इंजर्ड साइट है वहां पे प्लाज्मा आ जाता है जिसकी वजह से स्वेलिंग हो जाता है, राइट? जो ब्लड कैपिलरीज डायलेट हो जाने की वजह से प्लाज्मा oozes out of that capillaries and this plasma reaches to that particular site
and it gets accumulated over there. It gets accumulated over there and therefore it is responsible for swelling. इसके अलावा अगर कोई हमारा सेल्यूलर बैरियर बाकी है तो वो है फीवर. फीवर क्यों होता है? तो जब भी हमारे बॉडी में कोई पैथोजन एंटर होता है तो वो टॉक्सिन्स रिलीज करता है, और टॉक्सिन्स जो है वो रिलीज होने पर हमारे सेल्स में, हमारी बॉडी में जो मैक्रोफेजेस है वो एक केमिकल सब्सटेंस रिलीज करते हैं जिसे कहते हैं पायरोजन. पायरोजन का अमाउंट जब ब्रेन तक पहुंचता है, जब धीरे धीरे पायरोजन का लेवल बढ़ता है, तो क्या होता है कि इट विल रेगुलेट अवर ब्रेन टू इंक्रीज द बॉडी टेम्परेचर. So increased body temperature is good because it inhibits the growth of the bacteria. Body temperature जब बढ़ जाता है तो बैक्टीरियल ग्रोथ जो है वो कम हो जाता है. But very high temperature is again very much problem for our body and therefore it should not happen. फीवर में क्या होता है? फीवर में हमें फीवर इसीलिए आता है क्योंकि बैक्टीरिया जो एंटर हुआ है उसने टॉक्सिन्स रिलीज किए हैं हमारी बॉडी में. इन टॉक्सिन्स के अगेंस्ट हमारे मैक्रोफेजेस एक केमिकल सब्सटेंस रिलीज करते हैं जिसे कहते हैं पायरोजन. पायरोजन जैसे जैसे लेवल बढ़ता है वो हमारे ब्रेन तक पहुंचता है एंड इट रेगुलेट्स द थर्मोस्टेट ऑफ अवर बॉडी. इट चेंजेस द टेम्परेचर टू अ बिट हायर टेम्परेचर. Higher temperature will inhibit the entry and the growth of the bacteria further. So that is a way of naturally defense. Fever आना जो है वो एक defense mechanism है हमारी body की, but it should not exceed beyond certain level. Otherwise it would be destructing our cells, destructing our enzymes. Last barrier that we need to talk about in this topic is the fourth barrier called cytokine barrier. तो साइटोकाइन्स जो है these are also specific proteins. Specific proteins, for example, interleukins produced by ल्यूकोसाइट्स. तो ल्यूकोसाइट्स जो है वो एक प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं जिसे कहते हैं इंटरल्यूकिन्स. इसके अलावा ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, ऐसे कई सारे इंटरलिम्फोकाइन्स जो हैं वो भी ऐसे सब्सटेंसेस हैं. अनदर एग्जांपल इज लिम्फोकाइन्स which are proteins produced by lymphocytes, and these all inhibit viral growth. मतलब बॉडी में अगर कोई वायरस एंटर हो चुका है तो वो वायरस को ग्रोथ को इनहिबिट करने का फंक्शन जो है वो हमारे सेल्स का होता है, जो एक स्पेसिफिक प्रोटीन्स प्रोड्यूस करते हैं जैसे कि इंटरल्यूकिन्स एंड लिम्फोकाइन्स. तो ऐसे सब्सटेंसेस जब रिलीज होते हैं बॉडी में से तो उसे साइटोकाइन बैरियर में हम कंसिडर करते हैं. सो दीज वेर ऑल 4 बैरियर्स दैट वेर इंक्लूडेड इन योर इनेट इम्यूनिटी. इन द नेक्स्ट क्लास वी विल टॉक अबाउट द एक्वायर्ड इम्यूनिटी.